بلیٹن کے آغاز میں کورونا وائرس کی تازہ ترین فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لاہور میں کورونا وائرس سے مزید 11 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی تعداد 556 ہو چکی ہے۔ شہر میں کورونا وائرس کے 471 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مجموعی تعداد 34,282 ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کورونا کے 1,204 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تعداد 66,943 ہو چکی ہے۔ ترجمان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کورونا سے 28 مزید اموات ہوئی ہیں، مجموعی تعداد 1,435 ہو گئی۔ لاہور میں کورونا وائرس سے مزید 11 اموات ہوئی ہیں، مجموعی تعداد 556 ہو گئی ہے۔ شہر میں کورونا وائرس کے 471 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 34,282 ہو گئی ہے۔ ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ تازہ ترین رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں کورونا کے 1,204 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کل تعداد 66,943 ہو چکی ہے اور پنجاب میں کورونا سے 28 مزید اموات ہوئی ہیں، مجموعی تعداد 1,435 ہو چکی ہے۔ بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے پابندی کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ان ہاسپٹلز کو اجازت ہے جنہیں ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے۔ مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کچھ ہاسپٹلز نے خلاف ضوابط پلازما ٹرانسفیوز کیا ہے۔ پلازما ٹرانسفیوژن کے کلینکل ٹرائل جاری ہیں، ابھی نتائج آنا باقی ہیں۔ جبکہ کوئی خلاف ضابطہ پلازما ٹرانسفیوز کرتا پایا گیا تو کارروائی ہوگی۔ کارروائی کمیشن ایکٹ 2010 کے تحت کی جائے گی، جبکہ تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے۔ بغیر اجازت کورونا مریضوں کے لیے پلازما ٹرانسفیوژن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے پابندی کا باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ان ہسپتالوں کو اجازت ہے جنہیں ایڈوائزری گروپ نے اجازت دی ہے۔ کچھ ہسپتالوں نے خلاف ضوابط پلازما ٹرانسفیوز کیا ہے۔ پلازما ٹرانسفیوژن کے کلینکل ٹرائلز جاری ہیں، نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ مراسلے کا یہ متن ہے، کوئی خلاف ضابطہ پلازما ٹرانسفیوز کرتا پایا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی کمیشن ایکٹ 2010 کے تحت ہوگی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے عوام حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کی جانب سے یہ اہم ہدایات ہیں جو کہ عوام کے لیے جاری کی جا رہی ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت 8 مزید علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈر ٹاؤن، اندرون شہر وال سٹی مکمل بند کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی لاک ڈاؤن کے وقت کا تعین کرے گی، رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے حالیہ اجلاس میں شہر کے 21 علاقوں کی 61 گلیاں اور بلاکس کے بعد 8 مزید علاقوں کو مکمل سیل کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر وارڈ سٹی میں مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ 3,613 مریض رپورٹ ہونے پر مجوزہ علاقوں کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے پر اصولی اتفاق ہو گیا۔ ان علاقوں میں 96,229 گھر، 2,33,000 خاندان جبکہ 10,69,000 آبادی ہے۔ تاہم مکمل لاک ڈاؤن کے وقت کا تعین کابینہ کمیٹی کرے گی۔ 8 بڑے علاقوں کو بند کر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت پہرا دیا جائے گا۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے سیکشن 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ضلع انتظامیہ کو لاک ڈاؤن کے ایریاز بڑھانے اور سخت اقدامات کی ہدایت کر دی۔ دستاویزات کے مطابق اندرون شہر کی اکبر منڈی اور شاہ عالم مارکیٹ کھلی رہے گی۔ عاظم کلات مارکیٹ سمیت رنگ محل و دیگر بازاروں کو بند کرنے یا کھولنے پر چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کی اجازت درکار ہوگی۔ جوہر ٹاؤن کے لاک ڈاؤن کیے گئے علاقوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ گزشتہ 14 روز میں 2,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مکمل لاک ڈاؤن کے علاقوں میں شاپنگ مالز اور مارکیٹس بند رہیں گی۔ تاہم پالیسی کے مطابق گروسری سٹورز، ملک شاپس اور ایشیائی خرد و نوش کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ سرکاری ملازمین اور پیرامیڈک سٹاف کو نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ کیمرہ مین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ICUs کے 184 بستروں میں سے صرف 38 خالی رہ چکے ہیں۔ جناح جنرل کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل کے ICUs میں ایک بھی بستر خالی نہیں ہے۔ میو 84% اور سروسز ہاسپٹل کے ICU میں 87% بھر گئے ہیں۔ لاہور کے پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلز میں کورونا کے 643 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس کے 203 مریض ICU اور 129 وینٹیلیٹرز پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے سرکاری ہاسپٹلز میں جگہ کم پڑ چکی ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں ICUs کے 184 بستروں میں سے صرف 38 خالی ہیں۔ جناح جنرل کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل کے ICUs میں ایک بھی بستر خالی نہیں ہے، جبکہ میو میں 84% اور سروسز ہاسپٹل کے ICU میں 87% بستر بھر چکے ہیں۔ لاہور کے پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹلز میں
कोरोना के 643 मरीज जेर इलाज हैं और कोरोना वायरस के 203 मरीज आईसीयू और 129 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। आईसीयूज में एक भी बिस्तर खाली नहीं है, जबकि हुकूमत पंजाब ने ऑक्सीजन और सिलेंडर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऑक्सीजन और सिलेंडर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। कैसर खोकर बताएगा, पाबंदी आयद की गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, हुकूमत पंजाब ने ऑक्सीजन और सिलेंडर के ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 2 माह के लिए फौरी तौर पर जो है वो सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जो है करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जबकि इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी तौर पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर और महकमा हेल्थ को हुक्म दिया है कि फरवरी 2020 के मुताबिक जो है वो वेंटिलेटर की जो है वो किराया रखा जाए। अगर कोई किराया प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर का ज़्यादा इस्तेमाल और बढ़ाया किसी ने या फरवरी 2020 से ज़्यादा इजाफा किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। रवां कारोबारी हफ्ते का पहला रोज शहर की मार्केट्स और बाजारों में कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज करने का सिलसिला जारी है। ताजिर कायदीन कहते हैं कि जो ताजिर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करता उसकी दुकान सील और शहरियों को जुर्माना किया जाए। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शहर के बाजारों और मार्केटों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज किया जाता रहा। हाल रोड, बेदन रोड और माल रोड पर 10% ताजरों और गाहकों ने एसओपीज पर अमल दरामद न किया। यही सूरत हाल अनारकली बाजार, उर्दू बाजार और मुलहिका मार्केटों में नजर आई। ताजिर कायदीन ने कहा कि जो ताजिर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं करता उसकी शॉप सील कर दी जाए। यूनियन मुदाखलत नहीं करेगी। हम ये नहीं चाहते कि जो 5-10% की जगह 90% को भी सजा मिले। और दूसरी बात में इंतजामिया, अब हफ्ते वाले दिन गवर्नमेंट ने ये जो मास्क का नोटिफिकेशन जारी किया है, हम अपनी दुकानों के अंदर तो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं और कस्टमर को सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते जो जिसने मास्क ना पहना हो। लेकिन जो रोड पे चल रहा होता है, जो ठेलों पे खड़ा होता है या रोड पे चल रहा है, उसका तो काम वो तो इंतजामिया ने करना है ना। इंतजामिया ने उसकी सख्ती करनी है और गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे फाइन किया है ना, इस ऊपर 500 रुपया जुर्माना कर दे। मार्केटों और बाजारों में आने वाले खरीदार भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। ताजिर कायदीन कहते हैं कि इंतजामिया मास्क न पहनने वाले शहरियों को भी भारी जुर्माना करे ताकि एक भी शहरी बगैर मास्क के नजर न आए। तमाम ताजिर तंजीमों के कायदीन ने कहा कि ताजिर तंजीमें जिला इंतजामिया के साथ खड़ी हैं। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन राना अयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली ने मास्क पॉलिसी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी मुलाजमीन और अरकान असेंबली को मास्क पॉलिसी पर हर सूरत अमल दरामद करने की हिदायत कर रखी है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में बगैर मास्क के दाखिले पर भी पाबंदी है। ताहम पीर के रोज डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी की जानिब से मास्क पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया है। डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास के फुटेज में देखा जा सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर बगैर मास्क के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जो हुकूमती मास्क पॉलिसी पर सवालिया निशान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का दौरा किया। 49वीं नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ ने 49 नेवल स्टाफ कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि नेवल वार कॉलेज में मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की तारीख जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आर्मी चीफ ने कहा जब भी दुश्मन का सामना होता तो पाक बहरिया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने बहरी सरहदों की हिफाजत भरपूर अंदाज में की। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस, जियो स्ट्रेटेजिक सूरत पर भी इजहार ख्याल किया। ISPR के मुताबिक वार कॉलेज आमद पर कमांडेंट रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफकी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसन भी आर्मी चीफ के हमरा थे। पंजाब असेंबली के इजलास में तीसरे रोज भी बजट पर आम बहस जारी रही। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, इजलास का हवाल बताएगा। ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास आज
1 घंटा 10 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। आज इजलास के तीसरे रोज़ अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जो आइंदा माली साल का बजट है उस पर बहस की गई। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो बजट पर शदीद तनकीद की गई। उनका ये कहना था कि बजट में जो है वो गरीब को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया, जबकि जो हुकूमती अरकान असम्बली थे उनका ये कहना था कि मुश्किल तरीन हालात में जो है वो बजट तैयार किया गया और इस बजट में जो है वो मैक्सिमम कोशिश की गई है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। आज पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर जब इजलास की सदारत कर रहे थे तो ये भी देखा गया है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो हुकूमती मास्क की पॉलिसी है उसको नज़रअंदाज किया गया और डिप्टी स्पीकर की जो फुटेज रिलीज़ की गई है उसमें ये देखा जा सकता है कि डिप्टी स्पीकर ने जो है वो मास्क नहीं पहना, जबकि वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ की जानिब से सख्ती से हदायत की गई है कि मास्क की पॉलिसी को जो है वो नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं किया जाएगा। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आस लगाने वालों को आस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले कि इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। दोनों रहनुमाओं ने बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वो उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। अवाम की खिदमत के सफ़र में तरीक़े इंसाफ के शाना बशाना खड़े हैं। अपोजिशन के पास फलाह आमा का एजेंडा है, ना कोरोना से निमटने का कोई तरीका। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादी साथ रहेंगे और इत्तेहाद भी मजबूत तर होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। मुलाकात के मौके पर रुकने कौमी असम्बली मूनस इलाही, सूबाई वज़ीर मियां महमूदुर रशीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद इत्तेहादी साथ रहेंगे और इत्तेहाद भी मजबूत तर होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। मुलाकात के मौके पर रुकने कौमी असम्बली मूनस इलाही, सूबाई वज़ीर मियां महमूदुर रशीद और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद इत्तेहादी साथ रहेंगे और इत्तेहाद भी मजबूत तर होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी। गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ इशूज पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने वुज़रा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मेडिकल यूनिवर्सिटीज का किरदार मिसाली है। अवाम SOPs पर अमल दरामद करके खुद भी और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम कोरोना वायरस के बायस SMEs और बैंक सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानेंगे हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से जो मौजूदा बजट आइंदा माली साल का हुकूमत ने पेश किया है उसमें जो ख़ास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से एक इजलास जो है मुनक़िद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर मैडम लुबना जो है मौजूद हैं। कि मैडम ये बताइएगा कि क्या समझती हैं आप कि किस हद तक जो बजट है वो बेहतर है और क्या क्या इशूज़ हैं इस बजट में? देखिए जी, मैं ये कहूँगी कि बजट जो है वो तो मुझे एक ख्याली पुलाव लग रहा है। बिकॉज देखें, आपने जब रेवेन्यूज़ जो है आपने जो है FBR के रेवेन्यूज़ के जी आप 27% बढ़ा देंगे, जबकि जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो नीचे गई है। और अगर आप रेवेन्यूज़ बढ़ाएंगे और इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि प्लीज़ आपने ये भी कहा है कि जो नॉन रेवेन्यू जो है मतलब FBR के अलावा भी जो अदर इनकम्स हैं वहाँ से वो जो है ना 501 बिलियन जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो वो अदर्स कहाँ से, अदर सोर्सेज कौन सी हैं, कौन सी ऐसे अदर कौन सा, मतलब हम लोग कोविड में हैं, कोविड के सिलसिले में आप कुछ नहीं कह रहे। कोविड के सिलसिले में आप जी हम ये इमदाद कर देंगे वो इमदाद कर देंगे। हम लोग आपसे इमदाद नहीं मांग रहे, हम आपसे फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेसेस मांग रहे हैं। हमने कहा था कि जी आप ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को 1 साल के लिए मौखर कर दीजिए, लेकिन वो भी इसका ये भी जो हमारी शर्त है वो पूरी नहीं की गई है। बैंकिंग का स्प्रेड्स भी कम हो गए हैं, ये भी 33% कम हुए हैं। कि जिस बैंक स्प्रेड नॉर्मली ये होता है कि जिस रेट पे बैंक डिपॉजिटर से पैसे लेता है और जिस रेट पे वो लोन देता है, तो जिस वो स्प्रेड्स हैं वो कम हो गए। जब बैंक के अपने प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, बैंक के अपने जो है वो स्प्रेड्स कम हो जाते हैं, तो वहां से फिर बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हमें कैसे फैसिलिटेट कर सकती है मजीद लोन्स के लिए। फिर बजट बहुत साइलेंट है कि ये किक स्टार्ट इकोनॉमी को कैसे चलेगा।
جیسے کہ میرے ساتھ میڈم لبنہ جو ہے موجود تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ میں جو خاص طور پہ جو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کرنے والے افراد ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے جو کاروبار ہیں وہ چلے، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد اکانومی کو کس طرح چلانا ہے، معیشت کو کس طرح چلانا ہے، حکومت کو وہ بھی اقدامات ابھی فوری طور پہ جو ہے وہ اٹھانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ میرج ہالز اینڈ کیٹرنگ ایسوسی ایشن نے بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کورونا ایس او پیز کے تحت کیٹرنگ اور شادی ہالز کا کاروبار چلنے دے۔ میرج ہالز اینڈ کیٹرنگ ایسوسی ایشن کے کنوینئر ضیاء نے صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ اور سینئر نائب صدر علی حسام اصغر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ میرج ہالز اینڈ کیٹرنگ کے شعبے سے ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے، ہزاروں افراد 3 ماہ سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ Banquet halls should be allowed to start taking booking for August 2020 and onward. Number 2, in KG, we request that the government should issue order to waive off the rent of banquet halls and marquees. سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام اصغر نے کہا کہ میرج ہالز اور کیٹرنگ کورونا سے بچاؤ کے ساتھ بزنس کے لیے تیار ہیں۔ ایس او پیز کے تحت ٹیبل اور کرسیوں کا فاصلہ رکھا جائے گا، بوفے سسٹم کی بجائے ٹیبل پر کھانا مہیا کیا جائے گا۔ میرج ہالز اینڈ کیٹرنگ کے کنوینئر ضیاء نے کہا کہ 3 ماہ سے کرایوں، ٹیکسز اور تنخواہوں کی ادائیگیوں کی مد میں کروڑوں روپے واجب الادا ہیں۔ ایس او پیز جو یہ کریں گے کہ جہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر 12 بندے بیٹھتے تھے، وہاں پہ 6 بندے بیٹھیں گے، 5 to 6 بیٹھیں گے۔ سو آٹومیٹیکلی آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک گورنمنٹ کا کنسرن ہے وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو بوفے سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا کھانے کا، اس کو انکریز کیا جائے گا تاکہ رش ایک جگہ پہ نہ پڑے۔ یہ بھی ان کی بہت اچھی سجیشن ہے۔ میرج ہالز اینڈ کیٹرنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ 3 ماہ سے کاروبار بند پڑے ہیں۔ سو آٹومیٹیکلی آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک گورنمنٹ کا کنسرن ہے وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو بوفے سیٹ اپ ہوتا ہے، اور پنجاب آرچی ایسوسی ایشن بھی 23 جون کو آن لائن ریفریشر کوچنگ کورس کروائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں سے کاروبار بند پڑے ہیں۔ سو آٹومیٹیکلی آپ کی آن لائن کورسز میں اب پنجاب کی جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کا بھی شمار ہونے لگا ہے۔ پہلے پنجاب جو ہے آرچری ایسوسی ایشن نے پہلا آن لائن کورس جو ہے وہ کروانے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 23 جون کو شروع ہوگا، جس میں 4 جو ہے وہ خصوصی لیکچر دیے جائیں گے، جس میں پہلا لیکچر جو ہے وہ آرچری کی بیسک پر حافظ عبد الرحمان دیں گے، جبکہ دوسرا لیکچر جو ہے نیوٹریشن آف ایتھلیٹ پرفارمنس پر ڈاکٹر سیدہ مہوش جو ہیں وہ لیکچر دیں گے، جبکہ ڈیولپمنٹ ٹیلنٹ آف سپورٹس پر ڈاکٹر اجاز اصغر جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ لیکچر دیں گے، جبکہ چوتھا اور آخری لیکچر جو ہے جو کہ کوچز کی کوالٹی پر ہے وہ دیں گے شہزاد انور صاحب، جو کہ برازیل کے جو پروفیشنل ٹیم کے جو ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، کوچ بھی رہ چکے ہیں، وہ اس پر لیکچر دیں گے۔ پنجاب کی جانب سے، پنجاب کی کسی بھی ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ پہلا آن لائن کورس ہے، جس کے اندر طلبہ کے ساتھ ساتھ ڈویژنل سپورٹس آفیسر، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کے ساتھ ساتھ جو تحصیل سپورٹس آفیسر ہیں وہ بھی اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس آن لائن کنڈیشننگ اور اسٹرینتھ لیکچر کورس ختم ہو چکا ہے۔ کورس میں 5 پاکستانی لیکچرارز کے علاوہ 61 لیکچرارز نے بھی شرکت کی۔ لیکچرز کورس کا مقصد ڈوپنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ حافظ شہباز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ شہباز، اس حوالے سے مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کے لیے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ لیکچرر کورس جو ہے آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ 4 روزہ یہ کورس ہے، جس میں پاکستان کے 5 لیکچرارز سمیت دنیا بھر سے 61 لیکچرارز نے شرکت کی۔ اس کورس کا بنیادی طور پر مقصد جو ایتھلیٹکس میں جدید ٹیکنالوجی اب آئی ہے، خاص طور پر اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ کے حوالے سے ایتھلیٹس کو آگاہی دینے کے لیے لیکچرارز کو جدید تقاضوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لیکچر میں سب سے اہم چیز جس میں غور کیا گیا وہ یہ تھی کہ جو ڈوپنگ کا بڑھتا ہوا رجحان ہے ایتھلیٹس میں بہت زیادہ، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ خاص طور پہ جو نئے ایتھلیٹس آ رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈوپنگ جو ہے ممنوع ادویات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ 5 پاکستانی لیکچرارز کے علاوہ 61 جو کورس میں شریک لیکچرار تھے ان کو مختلف جو چیزیں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو ٹاپ اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کے لیکچرار تھے انہوں نے اس کورس میں لیکچر دیے ہیں۔ پاکستان کے رفیق احمد جو گروپ لیڈر بھی ہیں، انہوں نے اس لیکچر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جو اب اس کے بعد ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے اس میں جو ٹاپ لیکچرار جو ڈکلیئر ہوں گے وہ دنیا بھر میں جا کر مختلف کورس کریں گے، اور اس کے بعد آنے والے بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت نے کمزور طبقے کے لیے آٹے کی سپلائی کی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔
सेक्रेटरी महकमे खुराक ने वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान को तजावीज़ अरसाल कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरतमंद अफराद को सस्ते दामों आटा फराहम किया जाएगा। ज़रूरतमंद अफराद को आटे की फराहमी के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ दी गई है। एहसास प्रोग्राम के तहत 50 लाख अफराद का डेटा मौजूद है। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद की तफसीलात मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में अरसाल की जाएंगी। तमाम अफराद की तफसीलात मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट में अरसाल की जाएंगी, ये बताया जा रहा है। ज़राए की जानिब से महकमे खजाना पंजाब डिप्टी कमिश्नर्स के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करेगा। आपको बताते चलें कि अहम फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कमजोर तबके के लिए आटे की सप्लाई की हिकमत अमली मुरतब की है। सेक्रेटरी महकमे खुराक ने वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान को इस हवाले से तजावीज़ भी इरसाल कर दी हैं। पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरतमंद अफराद को सस्ते दामों आटा फराहम किया जाएगा और ज़रूरतमंद अफराद को आटे की फराहमी के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। जिला इंतजामिया ने शहर में चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर कर दी, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स की अक्सरियत ने मिलों से चीनी की खरीदारी रोक दी। शुगर डीलर्स कहते हैं कि चीनी के पहले पड़े स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, मजीद महंगी खरीद कर नुकसान नहीं कर सकते। हुकूमत एक्स मिल चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो तय करे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करा सकती, जो कि हुकूमत की नाअहली है। कहीं नहीं मिल रही ना, 90-85 कहीं नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर कीमत मुकर्रर करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए, ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। और शहर मुनाफाखोरों के निर्गे में है। हुकूमती तमाम तर दावे सिर्फ दावे साबित हो रहे हैं। सब्जियां, फल और ब्रायलर चिकन सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त ना हो सका, जबकि आटा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। शहर में मुनाफाखोर माफिया का राज। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर फरोख्त होता रहा। लहसुन 300, अदरक 400, आलू 60 से 70, प्याज 30 से 40, घिया कद्दू 80, काली दौरी 80 से 100 और लीमू 120 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि आम 100 से 150, आलू बुखारा 200 से 300, केला 80 से 150 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत 270 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन कहीं भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद न हो सका। दूसरी जानिब आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अगर महंगाई कम नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जारी करदा नरखनामे के मुताबिक सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की फरोख्त यकीनी बनाए। 1000 छोड़कर जब 1200 का हमारी वाम खरीदती है, कोई बहस नहीं करती। मुर्गी 400, 450 पीछे रही है, हमारी वाम बेधड़क होकर खरीदी गई है। ये सारे एक गाल लें तो ना लें तो आप पे रेट कम आ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना है तो मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं, कलेक्टर कस्टम्स अपील्स नौरीन अहमद तारड़ और कलेक्टर कस्टम्स वैल्यूएशन अमरीन अहमद तारड़ की वालिदा। अगर हुकूमत ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना है तो मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 40। तारड़ और कलेक्टर कस्टम्स इवैल्यूएशन अमरीन अहमद तारड़ की वालदा की रस्म कुल वफाकी कॉलोनी में अदा की गई। रस्म कुल में प्रिंसिपल ऑपरेटर अमजद बुखारी, जमशेद चीमा, इंस्पेक्टर नासिर हाशमी, शहजाद इसहाक, इंस्पेक्टर सैयद सज्जाद जैदी, गुलाम गोश और रेहान जैदी समेत कस्टम्स के दीगर अफसरान शरीक हुए। इस मौका पर मारूफ नात खान, अता हुसैन चिश्ती समेत दीगर ने बारगाहे रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। रस्म कुल में मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने कुरान और अहादीस की रोशनी में वालिदैन के मकाम व मर्तबा पर तफसीली खिताब किया। इस मौका पर कलेक्टर कस्टम्स अपील्स नौरीन अहमद तारड़ की वालिदा के इसाले स्वाब के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोरोना वायरस को शहर के सीवरेज में तलाश करेगी। कोरोना सीवरेज में भी मौजूद हो सकता है। वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से ये बताया गया है। यूएचएस सीवरेज में कोरोना वायरस की तलाश का आगाज कर रही है।
जबकि बासा के इश्तराक से कोरोना सीवरेज में तलाश किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोरोना वायरस को शहर के सीवरेज में तलाश करेगी। कोरोना सीवरेज में भी मौजूद हो सकता है। वीसी यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से ये कहा गया है, यूएचएस सीवरेज में कोरोना वायरस की तलाश करेगी और इसके साथ साथ बासा के इश्तराक से कोरोना सीवरेज में तलाश किया जाएगा। जबकि वीसी यूएचएस की जानिब से ये बताया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कोरोना वायरस को शहर के सीवरेज में भी तलाश करने जा रही है। कोरोना सीवरेज में भी मौजूद हो सकता है। वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से ये कहा जा रहा है, यूएचएस सीवरेज में कोरोना वायरस की तलाश का आगाज कर रही है। वासा के इश्तराक से कोरोना सीवरेज में तलाश किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल ने खबरदार किया है कि अगर वफाकी हुकूमत ने ज़राअत के लिए पानी के मसले को हल न किया तो आइंदा 15 से 20 साल में मुल्क में कहत पड़ सकता है। कहते हैं टिड्डी दल के हमले से पंजाब महफूज हो गया है। मौसमियाती तब्दीली ने किसानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मौसमियाती तब्दीली के खतरात पाकिस्तान पर मंडलाना शुरू हो गए। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने हुकूमत को आगाह कर दिया। मलिक नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि टिड्डी दिल के हमले से तो बच जाएंगे, लेकिन पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीली ज़राअत को हड़प कर जाएगी। पूरी कोऑर्डिनेशन करें, वन पेज पे हम इकट्ठे हों, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबे, जिससे हम इंशाअल्लाह ताला क्लाइमेट चेंज की इस थ्रेट को जिस तरीके भी हो सके इसका मुकाबला करें। नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। इनका कहना था किसानों को सख्त फैसले करना होंगे। आज मैं आपके सामने ये इतराफ़ करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि हमारी कॉटन इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन खड़ी है। अब देखें मेरे भाई, हमें थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा किसान जो है वो अल्लाह तवक्कल पे अपनी फसल को काश्त करता है। आज की इस मीटिंग का मकसद भी यही है कि हम इसको क्लाइमेट चेंज को टेकअप करें। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि अगर खुदा न खास्ता टिड्डी दिल का दोबारा हमला हुआ तो इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम का 19.6 मिलियन टन का टारगेट पूरा किया है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ वकार गुमन, सिटी 42। मॉनसून का मौसम सर पर पहुंच चुका है। शहर के बरसाती नालों की सफाई अभी तक न हो सकी। कूड़ा करकट से भरे बरसाती नाले इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगे हैं। मॉनसून का मौसम सर पर पहुंच गया। शहर के बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी। सतु कतला ड्रेनेज, शंघाई पुल नाला, LOS नाले में सफाई का काम ना हो सका। शंघाई पुल नाला कूड़ा करकट से भरा हुआ है। शहरियों ने इंतजामिया से नालों की बरवक्त सफाई का मुतालबा किया है। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।